you? My real life romance in the mountains is still pending. So we'll wait for that. But real life romance तो हो गया है हम दोनों का mountains में, हम तीनों का actually. So yeah, but like they said, the mountains are lovely. You really feel like at home and at ease. And I think that it was wonderful to start that journey over there. As a team also, all of us sitting here, and Anuj and Shikha and Karishma and everybody really has really had a romantic, a very romantic time together, delving into their own lives and, bringing out moments from their own lives and love stories. So I hope it translates to you guys on the 24th. Definitely is You going want to to talk be. about your romance? Yes, of course. मैं उन्हीं पे आ रही हूँ उसके बाद. You want to talk? You have to talk. My romance in the mountains is Musafir Cafe. And yeah, like, अच्छा वैसे बम्बई में कोई एक जगह जहाँ मुसाफिर कैफे खोलना हो आपको? I know वो मड आइलैंड के रहेजा में है मेरी वाइफ के साथ. वो काफी ऊपर है एक्चुअली, so 18 फ्लोर से माउंटेन ही लगता है कभी कभी. अच्छी बात है, वेरी नाइस. तो गुड प्लेस टू स्टार्ट विद मुसाफिर कैफे विद विक्रांत बीइंग द नेबर. नहीं बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ पाजी आपसे. और जैसे मोनिका जी ने भी कहा, तानिया जी ने भी कहा कि ये एक ऐसा जॉनर है जो सिनेमा में खास तौर पे काफी टाइम से एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा है. जबकि हम सब ये जानते हैं, हम सब रोमांस लव स्टोरीज देख के बड़े हुए हैं, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली देयर इज डर्थ ऑफ इट. और मेरा प्रयास पाजी हमेशा ये रहता है कि एज एन एक्टर, एज अ स्टोरी टेलर, कि कुछ अगेंस्ट द टाइड जाके कुछ करें. there is something that I very firmly believe in. It's called the blue ocean strategy. वो उसको आप गूगल करिएगा कभी. तो नेचुरली मेरा रुझान उन चीजों की तरफ है जो अगेंस्ट द टाइड हो. तो कोशिश रहती है एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट कि वो कुछ अलग करें. और नेचुरली it's Netflix's grace and Sharanya and Anuj's grace and Vijay's grace that they gave me this opportunity to also co-produce. And this was the right time for me to, क्योंकि वैल्यू सिस्टम मैच करते हैं हमारे. नेटफ्लिक्स तो मेरा घर ही है. मेरा 9वां प्रोजेक्ट है उनके साथ. तो इन सब के साथ मिलके सही लोगों के साथ जब आप जुड़ते हैं, जिनके साथ वैल्यू सिस्टम्स आपके मिलते हैं, तो आप आसानी से एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं. जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि while doing the show, या अभी जब आप देखते हैं, तो जब हम शो कर रहे थे, ऐसा कुछ था जो आपको बैक इन द मेमोरी लेन ले गया हो, या आप अभी जब देखते हैं तो कोई एक अंश जो है आपके कैरेक्टर का इट्स स्टिल विद यू एंड यू हैव रियलाइज्ड द रिलेशनशिप मोर बेटर? सर घर से निकलवाओगे आप. अब तो बच्चा भी हो गया, अब तो जाना तो घर ही है मुझे सर. जोक्स अपार्ट, हाँ मतलब ये सच है. ये मैंने पहले भी कहा था कि मुसाफिर कैफे इतना इज सो रिलेटेबल टू ऑल ऑफ अस, इफ आई कैन से, कि कहीं ना कहीं हम सब चंदर, सुधा, प्रीति अपने जीवन में रह चुके हैं. एंड हम सब वो दौर से गुजरे हैं, उन फीलिंग से गुजरे हैं, इसीलिए इससे रिलेट कर पा रहे हैं. तो बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं, आगे भी सीखेंगे शायद. तो ये तो जीवन है, नेचर ऑफ लाइफ, ये तो चलता रहेगा. Hi Vikrant. Yeah. Over here. Sorry, you're where? Oh, okay, on my left. Oh, my Hi Vikrant. How are you God. doing? Russell De Silva here. Russell, the rock star Russell. Vikrant, it is so admirable that conviction it takes to back such a story, not just as an actor, but as a producer. Sir, I tell you one thing. Firstly, good to see you after a long time. Same here, Vikrant. Secondly, when you have someone like a Netflix, जैसे मैंने कहा, I have a long-standing relationship with them, and I think we've done some great work, whether it is Haseen or Sector or Gini Ved Sunny. तो एक जो डोमेन है जहाँ पे कि क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो आपको उसकी चिंता नहीं होती है. And secondly, when you have Sharanya Rajgopal as your writer, when you have the content which you are backing as an actor, as a co-producer, तो I would say 80-85% stress आपका कम हो जाता है. Is because they are such accomplished, both of them, even a Netflix or a Sharanya and Anuj and TTT, Vijay Subramaniam, all of them, they are such established, robust institutions in themselves. So all you have to do is just focus on the acting part. And when you have actors like
Vedika, Mahima, we have Adil Hussain, we have so many other talented actors on the show. When you have such a director who's a taskmaster, he looks like this sweet little boy, but he is a taskmaster. He will whip you if you don't get it right. So you only have to focus on your job as an actor. Baki to everything is taken care of, because the quality of work on paper is so top notch. You are all the more nervous to go out there and perform as an actor. ये बाकी peripheral चीजों के बारे में वैसे मैं सोचता भी नहीं. And my second question, which along with you, I would love to bring in your co-actors also, Mahima and Vedika. The thing is that romance, I feel, is the most relatable genre because it is something that, unlike thrillers, unlike all other genres, crime and all, it's something that we all get to experience at some time in life, where you all must have experienced this yourselves, loving and losing, or how difficult it is to keep that part of your life and just portray a character as it is. I think I truly believe that characters, books, or any form of literature comes to you when you're ready for it or you're supposed to face it. I feel that I was always, or maybe when we started shooting for Musafir, I was looking for Preeti. I was looking to find somebody like her, and I was so lucky and grateful to play her because she's absolutely fearless. Playing her has probably made me more liberated in my own skin. She's made me love myself, and I think it's an ongoing journey. So, firstly, I think I would like to give credit to my writer Sharanya ma'am and Ruchir. I think they both have held us through this process with a lot of tenderness, and they also let us be. And as far as experiences are concerned, I think आप कुछ experiences अपने life से definitely लेकर आते हैं because it also helps you bring your own self to the craft, and that's what I feel makes it authentic. And I think when you have such a great script, आपको actually ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ती because you surrender, you collaborate, and then when you have such amazing actors. In fact, हमारी reading sessions में there was a lot that Vikrant helped me with my character, or I could, I drew few things from Vedika. So it was a complete collaborative process, and I think it's about prepping and at the same time surrendering. And I feel definitely there's a lot that you take from the project as much as you bring your life to the project. It's Right before a scene in which us as actors along with Sharanya and Ruchir would discuss the scene to kind of get the emotion right. And a part of that discussion was all of us being very vulnerable about our own experiences and our own memories of how we can relate to that. And it's not necessary that I, playing Sudha, can understand Sudha's moment in that emotion, but maybe Ruchir or Vikrant or Sharanya or Mahima has an experience. So I thought that there was a lot of, I said this earlier, there was a lot of shared healing that I think we all experience just because we're deep diving into a love story. And to me, there's no greater feeling in the world than love, right? There's a reason that all you happy faces are smiling at us because we've given you a love story. So yeah, I do think that you borrow a lot from your own life experiences, and in this specific case, I'm lucky to say that I got to borrow from all of their life experiences as well. Vikrant, I need your... oh, this is a bit loose. No, Russell, I think it's the same as them. I think as a creative artist, there is so much that you derive from your own life. It's impossible to completely disconnect from your own memory, your own emotions, especially when something like this is so close to home or so close to reality, something that is so grounded in. It's such a common experience, If I may say so, one of the reasons why all of us have probably taken up to this trailer is because it's so universal in nature. The emotions are so universal. तो वो तो derive up करते ही हो. And then like Vedika so beautifully said कि शायद ये नहीं है कि मैंने अपने जीवन में वो सारे experiences महसूस किए हैं. That is where your skill set as an actor also comes in.
that is where, you know, someone like a Sharanya comes in, you know, different life experiences but a shared history. That's where a director comes in. So it's an amalgamation of so many things coming together. Yeah. I would like to ask the director. Yeah, the movie gives you a feel of the 60s and the 70s. 60s and the 70s. Did you revisit any of the old movies to get that feel? For your Not really, but you are correct. My intent when Sharanya came to me was to come together and make a very classical love story, you know, something that I have felt missing from our screens for a while, and I thought this is a great opportunity for us to make one of those quintessential जिसको देखकर दिल टूटे, हंसी आए, खुशी हो, रोना आए, थोड़ा नाच गाना भी हो, you know, that kind of a love story. मेरा विक्रांत जी से सवाल था विक्रांत, कि ये दो तरह के प्यार। इन्होंने शुरू कर लिया, इसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। I hope that's okay. थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे पहले तो आपको कांग्रेट्स करना है प्रीतम के लिए, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है उसमें। और मुझे ये सवाल पूछना था कि दो तरह के प्यार दिखाए गए हैं इसमें। एक होता है इंस्टेंट मैगी वाला, 2 मिनट्स वाला जिसमें लड़के ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और एक होता है ये महिमा वाला कि मतलब उस पर विश्वास होता है। तो बीरबल की खिचड़ी ये मैगी वाला तो मतलब मतलब बादाम खाने से अक्ल नहीं आती है, धोखा खाने से अक्ल आती है। तो ये वाला प्यार ज्यादा अच्छा है कि मैगी वाला प्यार आपके दिमाग में? मैम आप बहुत क्यूट हो, बहुत क्यूट हो। आई थिंक दोनों ही बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैगी वाला नहीं होगा तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, राइट? और अगर वो महिमा वाला नहीं होगा तो मैगी वाले की वैल्यू नहीं होगी। आई थिंक ये सारे अनुभव जो हैं जीवन के बहुत जरूरी हैं। ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं कहूँ तो जो चीजें मैंने 18, 20, 22, 25 की उम्र में जो उस वक्त मुझे बहुत सही लगती थी, अधिकतर हाइंडसाइट में देख के लगता है कि अरे उस वक्त में जो कन्विक्शन के साथ हमें सही लगती है, आज हम उनको देख के बोलते हैं अरे यार मैं कितना बेवकूफ था यार, कितना नादान था यार, मुझे वो चीज वैसे नहीं करनी चाहिए थी। और खासतौर पे रिश्तों में कई बार कुछ चीजें हम कर जाते हैं या कह जाते हैं जो हमको सिर्फ रेट्रोस्पेक्ट में ही उसका जवाब मिलता है। तो हर तरह के रिश्ते होने चाहिए। 2 मिनट मैगी भी होनी चाहिए और महिमा भी होना चाहिए। जैसे बारिश में मैगी का मजा कुछ और होता है, बट रोज मैगी खाइएगा तो 10 लग जाएगा। मैम लेकिन मैगी और घर के खाने के बीच में क्या कौन जीतेगा वो अभी तक फैसला है। खिचड़ी ये आपका कहना है। I think we'll go to ma'am. She had a question. Sorry, Navita. Yeah, my question is Thank कि you. आपने काफी सीरियस और ऐसे रोल्स काफी किए, अभी रिफ्रेशिंग है कि आप ये लव स्टोरी में आ रहे हो और फिर प्रोड्यूस भी कर रहे हो, तो आपको कैसे फीलिंग हुई ड्यूरिंग द मेकिंग में भी, कैसे आपको फीलिंग रही? जी बहुत अच्छा लगा। I can very proudly say that Musafir Cafe was one of the best working experiences of my life. Was one of the best scripts that I've read. बहुत कम ऐसी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो एक्चुअली एक बेंचमार्क रहती हैं आपके खुद के करियर में भी, क्योंकि एज एन एक्टर आप आए दिन स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, पर नॉट जस्ट टेक्निकली बट ऑल्सो एज एन आर्ट फॉर्म ना बहुत कम स्क्रिप्ट्स होती हैं जो वो बिटवीन द लाइंस जो कह जाती है ना वो आपके साथ रह जाती हैं। सो मुसाफिर वाज डेफिनेटली वन ऑफ दोज स्क्रिप्ट्स। एंड एज अ प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर मुझे कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि इससे अच्छी टीम के साथ मैं अपना बैनर लॉन्च नहीं कर सकता था। इतने सक्षम राइटर्स, ये इतना सक्षम प्लेटफॉर्म जो है, जो सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करते हैं, पर आपको साथ में एक जर्नी लेने के लिए तैयार होते हैं आपके साथ, नर्चर करते हैं, माली की तरह पानी डालते हैं, कब कम डालना है कब ज्यादा डालना है वो सींचते हैं जैसे। तो वो नेटफ्लिक्स ने किया है शो पे, उसका ज्यादा ये कह पाएंगे बिकॉज डायरेक्टली ये प्रोड्यूसर्स आए हुए हैं शो की। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है मुझे। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ द शो, वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी जब ये 24 को आएगी। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, आपकी इधर रूना,
Yeah, hi, जी, hi. अब मैं इनको पूछने देता हूँ। Oh, okay. Sorry. Sorry. अच्छा, आप दोनों को तो मैं सालों से कवर करते आ रही हूँ, आपके भी बहुत सारे वीडियोस में देखती रहती हूँ। आप दोनों की अगर मैं बात करूँ, विक्रांत, इतने खूबसूरत और इतने भयानक रोल्स आपने निभाए हैं कि कांप जाएं वो भी कम हो जाता है, वहीं पर बहुत प्यारे रोल्स निभाए हैं। आप जब थक जाते हैं तो क्या किसी कैफे में जाते हैं या फिर आप घर पे बैठकर चाय पीते हैं? यहाँ खिचड़ी और मैगी की बात नहीं कर रही। जब थक जाता हूँ तो आई थिंक ज्यादातर लोग जब थक जाते हैं तो घर ही जाते हैं। तो हमारी बात भी हुई थी जब मैंने ब्रेक लिया था बीच में, तो मैं ज्यादातर तो घर ही जाता हूँ, फिर थोड़ा बहुत ट्रैवल कर लेते हैं। आई थिंक वो एक फटीग हम सबके जीवन में आता है कहीं ना कहीं, इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि दिन रात आप इतना काम करते हैं तो कई बार आप जस्ट वांट टू टेक अ बैक सीट एंड हैव एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कि आप क्या कर रहे हो इतने सालों से, और आर यू इवन डूइंग इट एज वेल एज यू थिंक यू आर। तो मैं तो मोस्टली घर ही जाता हूँ या फिर ससुराल चले जाता हूँ, धर्मशाला पहाड़ों पे, वहाँ पे बहुत अच्छे कैफे हैं, मैक्लोडगंज में बहुत अच्छे कैफे हैं। It's famous for that. जी। महिमा, we had really lovely shoots together ages back. देख के बहुत अच्छा भी लगता है। आप क्या करती हैं जब you're really tired? आप कैफे में जाती हैं, आप घर पर जाती हैं, या मे बी योग और कुछ करती हैं? I'm sorry to interrupt, but this has to be the last question, please. From my side, yes. आई थिंक जो मुझे उस वक्त सही लगे मैं वो करती हूँ। तो कभी कभी मैं अपने दोस्तों के पास चली जाती हूँ, कभी मैं मेरा पेट है, मेरा डॉग, कभी उसके पास चली जाती हूँ, कभी ट्रैवल करती हूँ, कभी बस अपने साथ रहती हूँ। तो आई थिंक जो उस सिचुएशन में मुझे पीस दे मैं वो करती हूँ, या कभी कभी बस बारिश के मजे लेते लेते बस चाय पीती हूँ। कुड बी एनीथिंग। सब तो बोल दिया है इन दोनों ने। But your experience of just letting it, loose. I think depend करता है किस चीज से थक गए हो। If I'm tired of work, then I want to go home and read a nice book and sleep and play with my doggy also. स्टेटमेंट में बहुत ताकत है, एंड आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई यू आल्सो काइंड ऑफ एसोसिएट विद इट। हम ये कहानी पहले जो है क्या आपने इनिशिएट की थी? नहीं, मैंने नहीं की थी, जिन्होंने की थी वो यहाँ बैठी हैं, शरण्या राजगोपाल। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए प्लीज। मैं को प्रोड्यूसर हूँ सर, असली मैडम ये है, असली प्रोड्यूसर ये है, ये और अनुज गोसालिया जो है ये बाकी बताएंगी ये। या टाइटल के बारे में बताइए, लाइक हाउ यू केम टू टाइटल एंड द स्टोरी। तो करीबन 2 साल पहले आई रेड दिव्य प्रकाश दुबे की किताब, और किताब की जो सोल है वो कहीं ना कहीं मेरे दिल में घर कर गई, क्योंकि बचपन से आई हैव बीन अ ट्रैवलर। आई हैव ट्रैवल्ड अलोन इन माय 20s क्वाइट अ बिट, सोलो ट्रैवल्स किया। और कई हमेशा जब पहाड़ों में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार कई दूर पहाड़ों में एक सुंदर सा कैफे हो जहाँ पर लोग आए, कहानियाँ सुने, उनके लिए मैं खाना बनाऊँ। दैट वाज अ ड्रीम. And for me, the book resonated Chandar's want to make that cafe. So सबसे पहले वो किताब की कनेक्शन मेरे लिए वो चंदर की जर्नी रही. And उसके बाद I spoke to दिव्य प्रकाश दुबे, जिन्हें मैं प्यार से DPD बुलाती हूँ, और बोला कि भाई कहानी है यहाँ पर इसको सीरीज अगर बनाए तो उसको खोलना बहुत ज़रूरी है. तो we took the characters and I spent some time working on the material. सीइंग दैट इस कहानी को कॉन्वर्सेशनल से प्लॉट की तरफ कैसे ले जाए. तो कहानी खुलती गई और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, और इतने सारे मुसाफिर आज आ गए हैं हमारे कैफे में. तो 2 साल इट्स टेकन टू कम हियर. ये मुसाफिर ऑन बोर्ड कैसे आ गए? ओह, तानिया शुड टेक दैट. मतलब बहुत ही ऑर्गेनिक सी चॉइस थी. मैं सबको बोलती हूँ, Vijay from Collective, he had brought Sharanya and Anuj to meet us, and we are big fans of their work. Terribly Tiny Tales की emotions जो होती है बहुत strongly resonate करती है, जो उनके fan base से obvious है. लेकिन वो बहुत सारी कहानियाँ लाए थे, और उन कहानियों में सेकंड या थर्ड उन्होंने ये ऐसे दबा के रखी थी एक लॉग लाइन. दिव्य प्रकाश was also there, and जिस तरह से both शरण्या and दिव्या जिस तरह से उन्होंने इस कहानी के बारे में बात करी, वो एक इमीडिएट सॉर्ट ऑफ इट हिट अ नर्व कि एक तो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एन इंटरेस्टिंग रोमांस स्टोरी, बट दूसरी वाज देयर कन्विक्शन विद इट, द वे दे लुक्ड एट इट.
it was, after going through all the ideas, I was like, that book that you talked about, एक तो हिंदी literature, that's something I'm very passionate about. कि एक हिंदी लिटरेचर का पीस लेके हम उसके ऊपर एक सीरीज का फ्रेंचाइज माउंट कर सके, that was very exciting. And their vision on it, their conviction on how they were looking at a romance franchise with 3 key characters, it was a very exciting idea. And we want the best stories on Netflix, so this one was a hard one to let go. मेरा Hi, नाम आरती Namrata सक्सेना Sisdे. है। ओके, कुछ मेरे पास माइक था, माइक की ताकत, oh my god. So congratulations to all of you and especially to Netflix. नहीं, मैं बोल दूंगा, मैं बोलिए विक्रांत, to start with you. मैं बोल दूंगा। मेरा रोमांस अब तक चल रहा है पहाड़ों में। मेरी वाइफ धर्मशाला से है, तो पहाड़ों में आना जाना लगा रहता है। ससुराल है आपका? ससुराल है मेरा धर्मशाला, और वहाँ पे दलाई लामा का भी आशीर्वाद मिल जाता है कभी कभी। तो बट हाँ, मतलब जोक्स अपार्ट, आई थिंक पहाड़ों का एक बहुत अहम एक प्रभाव रहा है मेरे जीवन में। मैं खुद शिमला से हूँ, मेरे फादर साहब जो हैं वो शिमला से हैं, हालांकि मेरी पैदाइश बॉम्बे में हुई थी। तो और रोमांस, और चाहे वो किताबें हो, रोमांस हो, तो वो पहाड़ का एक अलग ही फैक्टर होता है। आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट इन स्टोरी टेलिंग। तो या आई मीन दैट्स एंड दिव्य प्रकाश दुबे जी ने कहानी बेस भी वहाँ की थी, तो इट वाज अ नेचुरल सॉर्ट ऑफ सेटिंग फॉर अस टू गो देयर। तो आपकी पहली मुलाकात शीतल से पहाड़ों में ही हुई? नहीं, या मुंबई में? पहाड़ों में नहीं हुई। मैंने रोमांटिक भी पूछा है ना। हाँ, तो रोमांटिक वही है, मतलब वही तो है, कह रहा हूँ मैं, रोमांस वहीं चल रहा है अभी, पहाड़ों में ही चल रहा है। ये मतलब असली में भी इतने शर्मीले हैं या सिर्फ आप बनते हो कैमरा? नमिता जी, आप मुझे जानते हो, आप मुझे निजी तौर पे जानते हो इतने सालों से, अभी आप जर्नलिस्ट मत प्ले करिए। वो तो मैं लॉन्ग टर्म पॉडकास्ट और इंटरव्यूज में प्लेस करती हूँ। बट नमिता, आई थिंक जो रोमांस की एक्सप्रेशन होती है ना, वो जो वर्ड्स होते हैं, जो डायलॉग्स होते हैं। बताओ पहाड़ों से तुम्हारा 1 2 3 4 है अगर बंद I think I have always been a mountain person. और जब मुझे पता चला कि एक तो हमारी स्क्रिप्ट इतनी खूबसूरत है और फिर वो मसूरी में बेस्ड है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये तो सोने पे सुहागा वाला मोमेंट हो गया। एंड आई थिंक पहाड़ मेरे लिए, आई फील जैसे ही मैं मसूरी पहुंची, आई फेल्ट बिलोंग्ड। आई वाज जस्ट टेलिंग समबडी दैट इफ देयर इज अनदर प्लेस अपार्ट फ्रॉम मेरा खुद का घर जहाँ मुझे घर वाली फीलिंग आती है, तो इट हैज टू बी मसूरी। एंड ऑफ कोर्स एक प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले बहुत नर्वसनेस होती है। इट्स लाइक यू स्टडीड एंड यू प्रिपेयर्ड एंड now it's about it's exam time. But as soon as I stepped into Mussoorie, I just surrendered. And you know what, I think mountains take care of you. They, being in that place itself, we had a great start, and I feel जब